السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دنیا۔ ناظرین گرامی، آج آپ لوگوں کے لیے کمانڈو سیریز کا قسط نمبر 13 تیار ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کہانی کی طرف جائیں، آپ لوگوں کو ایک درخواست ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بٹ صاحب مجھے غور سے دیکھ رہے تھے، تھوڑی دیر مجھ سے پوچھ گچھ کی، میرے لاہور والے گھر اور رشتہ داروں کے بارے میں پوچھا، تعلیمی قابلیت معلوم کی۔ جب میں نے بتایا کہ میں بھائی لاہور کی کشمیر فیملی سے تعلق رکھتا ہوں تو انہوں نے مجھے اپنی دکان پر بحیثیت منشم ملازم رکھ لیا۔ تنخواہ اگرچہ بہت کم تھی لیکن مجھے ایک سہارے کی ضرورت تھی اور وہ مجھے مل گیا۔ میری رہائش ہوٹل میں ہی رہی، دن کو بٹ صاحب کی دکان پر کام کرتا اور رات کو خان ہوٹل میں جا کر سو جاتا۔ شہر میں کشیدگی بڑھی جا رہی تھی، عوامی لیگ کے ہمیں لمبے چوڑے جلوس نکالتے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ یحییٰ حکومت اسمبلی کا اجلاس طلب کرے۔ مغربی پاکستان میں بٹو نے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا تھا۔ فروری میں حالات زیادہ خراب ہو گئے۔ ڈھاکہ میں بنگالی اکثریت والے علاقوں سے پنجابی اور بہار میرپور اور محمد پور کی بستیوں میں منتقل ہونے لگے۔ بنگالی جلوس کی شکل میں مغربی پاکستان کی حکومت کے خلاف نعرے لگاتے۔ محمد پور کی بستی سے گزرتے ہوئے شیخ مجیب الرحمن کی دان منڈی والی کوٹھی کی طرف جاتے۔ ان کی تیور بتا رہے تھے کہ کوئی بہت بڑا طوفان سر اٹھانے والا ہے۔ بادشاہی گروپ بھی مغربی پاکستان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے عوامی لیگ کا مظاہروں میں شریک ہو گیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ ڈھاکہ سے چٹاگانگ جا کر بھاری جہاز پکڑ لو اور کراچی روانہ ہو جاؤ۔ میں نے اس مقصد کے لیے مزید رقم بچانی شروع کر دی، لیکن بدقسمتی سے مارچ میں حالات نے تباہ کن صورت اختیار کر لی۔ 1 مارچ کو یحییٰ خان نے اعلان کر دیا کہ اسمبلی کی اجلاس نہیں بلایا جائے گا۔ اس وقت تک مکتبانی طلباء اور بھارتی فوج کے سپاہیوں نے بنگالی شہروں کے بیس میں آبادیوں میں جگہ جگہ اپنے خفیہ اڈے اور مورچے قائم کر لیے تھے۔ یحییٰ حکومت کے اس اعلان کے بعد کہ اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جائے گا، ڈھاکہ شہر میں لوٹ مار اور آتش زنی کی وارداتیں شروع ہو گئی۔ غیر بنگالیوں کے گھروں اور دکانوں کو لوٹ کر نظر آتش کیا جانے لگا۔ مشرقی پاکستان کی تقریباً ہر شہر میں غیر بنگالیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ محمد پور اور میرپور صرف اس لیے ابھی تک بچے ہوئے تھے کہ یہاں آبادی کی اکثریت غیر بنگالی تھی۔ 2 مارچ کو شہر میں کرفیو لگا دیا گیا تھا۔ اس کے اگلے روز شیخ مجیب الرحمن نے عدم تعاون کی تحریک کا اعلان کیا۔ 2 گھنٹے کے لیے کرفیو کھلا تو میں نے ایوب گیٹ کے پار بڑے بازار کی طرف جا کر دیکھا تو تمام غیر بنگالیوں کی دکانیں اور مکان نظر آتش کر دیے گئے تھے۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ بنگالی بھوکے بیڑیوں کی طرح غراتے پھر رہے تھے۔ غیر بنگالی بھاری تعداد میں ہجوم در ہجوم ایئرپورٹ کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ پاک فوج نے ایئرپورٹ پر قبضہ کر لیا تھا۔ بنگالی پولیس اور فوجی رجمنٹس بغاوت کر کے اسلحہ لے کر مغرب بانی کے ساتھ جا ملی تھی۔ بٹ کارپٹ ہاؤس کا کاروبار بھی ٹپ ہو گیا تھا۔ غیر ملکی گاہک بھی ادھر کا رخ کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ میرا لاہور واپس جانے کا پروگرام ابھی کٹائی میں پڑ گیا تھا، پھر بھی بٹ صاحب نے میرے لیے ہوائی جہاز کا ٹکٹ حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ مگر ٹکٹوں کا بلیک ہو رہی تھی اور مسافروں کی ایک بھاری تعداد پہلے سے ہی ویٹنگ لسٹ پر تھی۔ بٹ صاحب نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ حالات جلد ٹھیک ہو جائیں گے، پھر تم اطمینان سے مغربی پاکستان چلے جانا، میں خود تمہیں ٹکٹ خرید کر دوں گا۔ مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ غیر بنگالیوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ بنگالی طلباء نے جب دیکھا کہ مغربی پاکستان کے لوگ ایئرپورٹ کی طرف بھاگ رہے ہیں تو انہوں نے ایوب گیٹ کے سامنے والی بڑی سڑک پر باقاعدہ چوکی بنا لی اور ایئرپورٹ کی طرف جانے والے کا سامان لوٹنے لگے۔ پہلے ہی روز پنجابیوں کو روکا گیا تو انہوں نے اپنا سامان چیک کروانے سے انکار کر دیا۔ ایک بنگالی نے چاقو سے ایک پنجابی کی آنکھیں نکال دی، دوسرا بھاگا تو اسے ہجوم نے پکڑ کر قتل کر دیا۔ راجہ شاہی، چٹاگانگ، بوگرا، رنگپور، سلٹ اور دوسرے اہم شہروں سے بھی اس قسم کی بھیانک خبریں آ رہی تھی۔ مجیب نے اعلان کر دیا کہ کوئی سرکاری ملازم کام پر نہ جائے۔ اس دن مغربی پاکستان سے طرف جہازوں کی پروازیں بھی بند ہو گئی۔ کرفیو لگنے لگے۔ ہم محمد پور بند ہو کر رہ گئے۔ کھلتا تب بھی شہر کے کسی دوسرے علاقے میں جانے کی ہمت نہ پڑتی۔ ہر وقت لوٹ مار، آتش زنی، اغوا اور قتل و غارت گیری کا بازار گرم تھا۔
लाक़ानूनियत का ये आलम था कि मुश्तइल बंगालियों ने मगरबी पाकिस्तान के फ़ौजियों पर हमले शुरू कर दिए थे, जबकि फ़ौज अभी तक कमाल व ज़ब्त व तहम्मुल से काम ले रही थी। दरअसल फ़ौज या हुकूमत की तरफ देख रही थी कि शायद वो इस तबाही का कोई सियासी हल निकाले। एक दिन कर्फ्यू खुला तो मैं बंगाली लिबास पहन कर भट्ट साहब को बताए बगैर रिक्शे में सवार हुआ और एयरपोर्ट पहुंच गया। चूंकि मेरे पास कोई सामान नहीं था और लिबास बंगालियों का था, इसलिए चेक पोस्ट पर मुझे किसी ने न पूछा, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था, क्योंकि मेरा रंग गैर बंगाली होने का गमाजी कर रहा था। एयरपोर्ट पहुंचा तो 1947 की माजरीन की जो तस्वीर अखबार में देखी थी वो याद आ गई। पंजाबी, बहारी, पठानी, कुंबेज, हजूम की शक्ल में वहाँ पड़े हुए थे। इस सारे इलाके को फौज के जवानों ने अपने कब्जे में लेकर यहाँ मोर्चे बना रखे थे, जिसकी वजह से इन कुनबों की जानें बची हुई थी। यहाँ से डाका की चौनी का इलाका शुरू होता था। सड़क पर एक रुकावट खड़ी थी जो कि कार वगैरह चौनी में दाखिल होती, इसकी तलाशी ली जाती और इसके बूंद पर से सियाह झंडा उतार लिया जाता। यहाँ मुझे पाक फौज के एक सूबेदार मेजर से बातें करने का मौका मिला। इसकी आंखें रंजो गम से सुर्ख हो रही थी। कहने लगा, या खान ने हमारे साथ हाथ बांध रखे हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि इसका क्या अंजाम होगा। दबतन एक सियाह मोरस हुआ आकर रुकी। इसमें एक बुजुर्ग की आगोश में एक दुबली पतली लड़की नीम जान पड़ी थी। मालूम हुआ कि इसी मक्ती बहानी वालों के जंगल से छुड़ा कर लाया गया। सूबेदार मेजर सरताम कर एक कोके पर बैठ गया। मैं वहाँ से मोहम्मदपुर के लिए रवाना हुआ तो मैं भी रिक्शा लेते हुए घबरा रहा था, लेकिन मोहम्मदपुर पैदल जाना भी खतरे से खाली नहीं था। अब तो फौज को भी शहर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। यूँ महसूस होने लगा जैसे मैंने मोहम्मदपुर से निकलकर सख्त हमाकत की हो। शाम के 5 बज रहे थे। रिक्शे वाले बंगाली खड़े थे। मैंने मोहम्मदपुर का नाम लेने की बजाय एक बंगाली रिक्शे वाले से कहा कि दान मंडी ले चलो। वो अपने साथियों की तरफ देखकर मुस्कुराया और उन्हें बंगाली जुबान में कुछ कहा। मेरे दिल ने कहा कि उसे रिक्शे में न बैठूं, लेकिन इस वक्त तक रिक्शा सड़क पर दौड़ने लगा था। रिक्शा चौक के करीब पहुंचे तो वहाँ लोग पेट्रोल की बोतलें फेंक कर एक मकान को आग लगा रहे थे। जाहिर है कि ये किसी गैर बंगाली का मकान था। रिक्शाबान ने कहा, बाबू इधर गड़बड़ है, दूसरी सड़क पर से चलेगा। वो रिक्शे को मोड़कर एक बगली सड़क पर आ गया। मैं इसी बला कैसे मना करता। चौक में बंगाली गोंडा आग और खून का खेल खेल रहे थे। इस तरफ जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर था। अगरचे मेरा लिबास बंगालियों का था, मगर शक्ल सूरत वज़ो वक़्त से मैं साफ पंजाबी लगता था। फिर मुझे बंगाली भी नहीं आती, चुनांचे मैंने रिक्शे वाले को कुछ न कहा, लेकिन दिल में डर गया कि ये रिक्शे वाले भी बंगाली है और इसने अपने साथियों से कोई बात भी की थी। कमबख्त कई मकती बहानी ग्रुप के हवाले न कर दे। रिक्शा 2-3 ज़ीली सड़कों के गुजर कर एक ऐसी सड़क पर आ गया जो इससे पहले मैंने नहीं देखी थी। या एक तरफ पानी की बहुत बड़ी टैंकी थी। मैंने रिक्शे वाले से पूछा वो किस तरफ आ गया। इसने टूटी फूटी उर्दू में कहा, बाबू इधर खतरा है, तुम फिक्र न करो, हम तुम्हें घर पहुंचा देगा। बंगाली नौजवानों की एक टूरी फुटपाथ पर लाठियाँ उठाए खड़ी थी। मेरा रिक्शा के करीब से गुजरा तो उन्होंने मुझे कहा जाने वो नजरों से देखा। मैं रिक्शे में सिमट कर बैठा रहा। रिक्शे ने इनसे थोड़ी दूर ही गया होगा कि एक धमाका हुआ रिक्शे के और रिक्शा उछल पड़ा। मेरे पीछे बारूद का धुआं फैल गया था। रिक्शा ड्राइवर ने रिक्शे को गिरते गिरते संभाले और चीख कर बोला, बाबू बम भरा है। और इसके साथ इसने रिक्शे को सारा जोर लगाकर चलाना शुरू कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने दुश्मन के मोर्चों में घुसकर इनकी बड़ी बड़ी तोपें बमों से उड़ा दी थी, मगर इतनी घबराहट इस वक्त भी नहीं होती। एक अजीब सूरत हाल थी। मौत मुझसे आंख मचूली खेल रही थी। बंगाली रिक्शा ड्राइवर रिक्शे की तूफानी रफ्तार से चलाते हुए खुदा जाने किधर किधर घुमाता हुआ कहाँ जा निकला था। ऊपर से शाम हो रही थी। मुझे फिक्र लायक हो गई कि खुदा जाने जिंदा मोहम्मदपुर पहुंच भी सकोगा या नहीं। मैंने रिक्शे वाले से कहा कि वो मुझे कहाँ ले आया। हम एक ऐसी छोटी सी नीम पुख्ता सड़क पर खड़े थे जिसके एक जानिब गंदा नाला था और दूसरी तरफ फानी वजह के मकान बने हुए थे। ये सारी बंगला बाती थी। रिक्शे वाले ने कहा, बाबू मैं मुसलमान हूँ, जानता हो तुम भी मुसलमान हो और पंजाबी हो, तुम कालीन वालों के हाथ काम करते हो। मेरे बदन में खूब की लहर दौड़ गई। खुदा जाने ये बंगाली रिक्शा ड्राइवर घेर कर मुझे किसी दुश्मन इलाके में ले आया है। लेकिन इसके बाद उसे मुझे कुछ हौसला हो गया। इसने रिक्शा आगे बढ़ाया। हम गंदे नाले के साथ साथ जा रहे थे। आगे पुल आ गया। अभी हमारा रिक्शा पुल से कुछ फासले पर था कि पुल पर धमाका हुआ। बंगाली रिक्शा वाले ने रिक्शा रोक लिया और नीचे उतर आया। पुल पर मैंने आदमियों का एक हजूम देखा जो एक औरत और एक आदमी को पकड़कर घसीटते हुए ला रहे थे। मेरे देखते ही देखते उन्होंने दोनों को गर्दनें काट कर लाशें गंदे नाले में फेंक दी।
रिक्शा ड्राइवर ने तेजी से रिक्शे को पीछे मोड़ा और जल्दी जल्दी पाँव मारता हुआ इस कच्ची सड़क पर आ गया जहाँ पुरानी तरस के मकान थे और बंगाली बच्चे बाहर खेल रहे थे। वो कांपती आवाज में बोला, बाबू ये मक्ती बहानी वाले हैं। साइकिल रिक्शा नीम पुख्ता सड़क पर हचकोले खाता तेजी से मकानों के कतार के पीछे मुड़ गया, फिर एक बोसीदा बिल्डिंग के अहाते में दाखिल हो गया। रिक्शा ड्राइवर ने मुझे उतरने को कहा। मैं इसके राह मुकरम पर था, इसकी बात मानने की सिवा कुछ नहीं कर सकता। वो मुझे मक्ती बहानी वालों के साथ ही लगने लगा था। मैंने उससे उर्दू सिर्फ इतना पूछा कि वो मुझे कहाँ ले आया है। बंगाली रिक्शा ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने पीछे आने का इशारा किया। इहाते में एक तारीख जीना ऊपर जाता था। बाबू अभी खतरा है, ऊपर आ जाओ। मेरे लिए तो ऊपर भी खतरा था, लेकिन धड़कते हुए दिल के साथ जीना चलने लगा। एक ढीली सी सफ़ेद साड़ी फूश औरत मुझे देखते ही एक तरफ हटकर अपने हाथ साड़ी के फलव से पूछने लगी। वो बर्तन धो रही थी। बंगाली रिक्शा ड्राइवर ने उसे बंगला जुबान में जल्दी जल्दी कुछ कहा और फिर मुझे कमरे में ले जाकर तख्त पर बैठा दिया। वो खुद खिड़की में से नीचे झांकने लगी। इसने खिड़की बंद कर दिया और साड़ी पोश औरत को आवाज दी जो इसकी बीवी थी। वो मेरे लिए चाय बना कर ले आई। मेरा नाम लाल मियाँ है, ये मेरी बीवी ज़ुलेखा है। इसके वक्त तुम्हारा बाहर निकलना खतरनाक है। तुम रात यहाँ रहो, सुबह सुबह तुम्हें मोहम्मदपुर छोड़ूंगा। मैं इसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि इसका घर मेरे लिए महफूज नहीं है। मक्ती बहानी वाले यहाँ अभी आ सकते हो। बोला, हम तुम्हें छुपा देंगे, तुम फिक्र न करो, मैं जाग कर फेहरा दूंगा। एक नई मुसीबत बेदार हो गई। मैं इस वक्त सोचने लगा जब घर से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ था। मुझे हालात की संगीनी का एहसास था। थोड़ी देर कबल मैं अपनी आंखों से एक गैर बंगाली औरत और मर्द को कत्ल होते देख चुका था। ये कत्लेआम पूरे मशरक़ी पाकिस्तान में जारी थी। रात के अंधेरे ने बाहर नीम पुख्ता सड़क को अपनी लपेट में ले लिया था। कई कई खंबे पर कोई मदम सी बत्ती जल रही थी। लाल मियाँ ने मुझे दाल बात कराया। मुझे नादर भट्ट साहब का ख्याल आने लगा। वो यकीनन मेरे बारे में परेशान हो गए और जब रात को इनके पास नहीं पहुंचूंगा तो वो ये समझेंगे कि मेरे साथ कोई भयानक हादसा हो गया। लाल मियाँ बाहर दालान में चूल्हे के पास बैठा अपनी बीवी से चाय बनवा रहा था कि अचानक नीचे शोर हुआ। लाल मियाँ लपक कर मेरे कमरे में आया। इसने खिड़की खोलकर नीचे देखा। किसी ने नीचे से आवाज़ दी। लाल मियाँ ने ऊपर से जवाब दिया। बातें बंगला जुबान में हो रही थी जो मेरे समझ से बाहर थी। इसने जल्दी से खिड़की बंद की दी और बोली, वो मोहल्ले के आदमी वो इलाके में गैर बंगाली को कत्ल करना और इनके मकान लूटने के लिए मुझे साथ ले जाने आए हैं। तुम घबराना नहीं बाबू, मेरी ज़ुलेखा पहरे देंगे, इधर कोई नहीं आएगा। ये कहकर वो तेजी से सीढ़ियाँ उतर गए। शायद वो गोंडों को हर मुमकिन जल्दी अपने मकान से आगे ले जाना चाहता था। मैं कमरे में खामोश बैठा रहा। ज़ुलेखा ने मुझे चाय ला कर दी और टूटी फूटी उर्दू में मुझे हौसले दिया और कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद करके ताला लगा दिया। मकान के नीचे गोंडों का शोर आगे निकल गया। फिर खामोशी गहरी होती गई। एक घंटे बाद कर्फ्यू का सायरन बज उठा। शहर में कर्फ्यू लग गया था, लेकिन अजीब बात ये थी कि कर्फ्यू लगने के बावजूद फौज गश्त नहीं करती। फौज को तो शहर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। पाक फौज सिर्फ छावनी के इलाके तक ही महदूद थी। चुनांचे कर्फ्यू के बाद गोंडा अनासर मक्ती बहानी के साथ मिलकर गैर बंगालियों के बच्चे कुच्चे घरों पर दावा बोल देते थे। मर्दों को वही कत्ल कर देते, औरतों को अगवा करके ले जाते और मकान लूट कर उन्हें आग लगा देते। ये लाकानूनियत और बर्बरियत खुले बंदों से हो रही थी। यहाँ हुकूमत का हालात के आगे बेबस थी। लाल मियाँ आधी रात को वापस आए। मैं जाग रहा थी, इसकी भी ज़ुलेखा भी जाग रही थी। लाल मियाँ ने बताया कि मक्ती बहानी वाले यहाँ अक्सरियत भारतीय फौजी के हैं जो मक्ती बहानी का बेस बदल कर मुसलमानों के खून से होली खेल रहे हैं, मगर हम कुछ नहीं कर सकते। बंगाली मुसलमान भी भारतीय प्रोपेगेंडा के जहरीले असर में बह गए और इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। सारी रात इस तरह गुजर गई। जब दूर किसी मस्जिद से अजान की आवाज़ बुलंद हुई तो लाल मियाँ ने मेरे कमरे में आकर कहा, बाबू मुँह हाथ धो लो, हम अभी चलेंगे। मैंने गुसल खाने में जाकर मुँह पर पानी के छींटे मारे और बाहर आकर लाल मियाँ से कहा, अभी तो कर्फ्यू लगा है, अजान हुई है, अभी कर्फ्यू खुल जाएगा। लाल मियाँ ने कहा। चंद लम्हों के बाद कर्फ्यू खुलने का सायरन हुआ। लाल मियाँ मुझे लेकर नीचे आ गया। बिल्डिंग के अहाते में एक तरफ इसकी साइकिल रिक्शा खड़ी थी, या अंधेरा था। लाल मियाँ ने अहाते से बाहर सड़क पर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया, फिर लपक कर आए और बोला, सड़क खाली है, बैठ जाओ, हम मोहम्मदपुर जाएंगे। मैं कलीमा शहादत का अर्थ करता हुआ रिक्शे में बैठ गया। सुबह की ठंडी हवा में पिछले फेर के फीका अंधेरे में से गुजरता हुआ मोहम्मदपुर की तरफ रवाना हो गया। मेरे लिए ये सारे रास्ते अनजान थे।
दरमियान रिक्शे को कभी तेज करता और कभी आहिस्ता आहिस्ता चलाने लगा था। कई छोटी छोटी वीरान गलियों गुजर कर जब वो बड़ी सड़क पर आया तो मैंने इस सड़क को पहचान लिया। सड़क सुनसान पड़ी थी, कहीं कहीं कोई दुकान टूटी हुई दिखाई देती जिसका सामान बाहर बिखरा हुआ था। इस सड़क आगे जाकर अयूब गेट की तरफ मुड़ जाती, वहां से हमें मोहम्मदपुर में दाखिल होना था। जब रिक्शा मोड़ से घूमा तो एक तरफ से दो आदमी सामने आ गए। इनके हाथों में लाठियां थी और वो पुलिस के वर्दी में थे। लालमिया ने उन्हें देखते ही रिक्शे की रफ्तार तेज कर दी। दोनों आदमी हमारे रिक्शे की तरफ भागे। रिक्शा और तेज हो गया। लालमिया गद्दी के ऊपर लेट गया और तूफान अंदाज में पेडल चलाने लगा। पीछे से रिक्शे पर एक लाठी जोर से लगी। मैंने सर नीचे कर लिया। रिक्शा तूफानी रफ्तार के साथ अयूब गेट में से गुजर कर मोहम्मदपुर में दाखिल हो गया। लालमिया ने रफ्तार कम नहीं की। म्यूनिसिपल हाल की एक मंजिला इमारत के पास कुछ गैर बंगाली नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जाते नजर आए। लालमिया ने फिडल चलाना बंद कर दिया। वो बुरी तरह से भांप रहा था। मैंने सर उठाकर नीचे देखा, दोनों बंगाली पुलिस वाले गायब हो चुके थे। लालमिया ने एक मस्जिद के आगे जाकर रिक्शा रोक लिया और उतरकर फुटपाथ पर बैठ गया। इसकी हाल फूली हुई थी। मैं भी उतरकर इसके पास बैठ गया। जब इसकी सांस दुरुस्त हुई तो बोला, वो मक्ती बहानी वाले थे, मैं उन्हें पहचानता हूँ, खुदा ने तुम्हें बचा लिया। मैंने लाल मियाँ का हाथ पकड़कर प्यार से दबाया और कहा कि वो सच्चा मुसलमान है और मैं ये इसका एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकूंगा। तो दोस्तों आज के लिए यही काफ़ी है। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले किस्से के साथ। तब तक अपने दोस्त असद को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।